جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو فیصل آپ کو، ابرار اور نجم، میں آپ تینوں کو تو خاص طور پہ آج پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس طرح آپ نے اس دوران، یہ عید سے پہلے اور عید کی چھٹیوں کے دوران، آپ نے ہمارے کارکنوں کو، ان کو آپ نے شعور بھی دیا، ان کو آپ نے انٹرٹین بھی کیا، اور وہ ایسے کارکن ہیں جو کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس طرح کے کارکن ہے ہی نہیں. میں اپنے خواتین کی بھی بات کر رہا ہوں، اور جو ہمارے جو باہر سے ہر جگہ سے، بلکہ ہر سارے پاکستان کے حصوں سے جو کارکن آتے ہیں، میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں. اور میں آج پھر سے زمان پاک کے لوگوں کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے اس مشکل وقت میں اپنے گھر کھولے، ساتھ دیا، اور بڑی مشکلوں کا بھی، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے، یہ ہمارے سارے سب کے لیے ایک بڑا مشکل وقت گزرا ہے. میں اعتزاز احسن کا، کیونکہ وہ میرے ہمسائے ہیں، ان کی بہن کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کو بھی بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ہم ایک حقیقی آزادی کی جہاد لڑ رہے ہیں. ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو ابھی تک انہوں نے پاکستان کی تباہی کی، اور مزید آگے بھی پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ لوگ ہیں جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے لوگوں کو قربان کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. وہ لوگ عوام کا جو بنیادی حق ہے ووٹ دینے کا، جو پنجاب کے لوگوں کا حق تھا کہ جیسی اسمبلی ہم نے ڈیزالو کی، تو پنجاب کے لوگوں کا حق تھا کہ وہ اپنی ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کو منتخب کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات بچانے کے لیے یہ لوگوں کا وہ بنیادی حق نہیں دے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جس طرح کی سختی کی ہمارے لوگوں پہ، کسی جمہوریت کے اندر اس طرح کا ظلم نہیں ہوا سیاسی کارکنوں کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ایک دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی اور گولیاں لگیں، دوسری طرف پھر جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہ پھر سے بھی کریں گے، کیونکہ ان کو صرف ایک خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن ہو گئے تو عمران خان جیت جائے گا، اور اگر عمران خان جیت گیا تو ان کا احتساب ہو جائے گا. اس احتساب کے خوف سے یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی یہ مل کے جو سارا ٹولہ ہے لوگوں کا، اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ٹوٹل لوگ کوئی 7-8 لوگ ہیں جو سارے مل کے اس ملک کی تباہی ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میں مہنگائی ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے دور میں سب سے تیزی سے روپے کی قیمت گری، کیونکہ ان کے پیسے ڈالروں میں پڑے ہوئے ہیں باہر. ان کے شاپنگ، گھر، جائیدادیں، بینک اکاؤنٹس، بچے، ان کی شاپنگ، ان کی سرجریز سب پاکستان سے باہر ہیں. تو یہ پاکستان تو صرف لوٹنے آتے ہیں، جیسے مشکل وقت آتا ہے یہ باہر بھاگ جاتے ہیں. اور یہ ابھی پھر، یہ پاکستانیوں میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ پھر باہر بھاگیں گے. اور میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، حالانکہ سپریم کورٹ کے اوپر بہت پریشر پڑا ہوا ہے. یہ قوم ویسے جو چیف جسٹس پاکستان کے سپریم کورٹ، جس طرح انہوں نے اس مافیا کے خلاف آئین کو اپہولڈ کرنے کے لیے، آئین کے لیے سٹینڈ لیا ہوا، ساری قوم آج اپنے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو سلام پیش کر رہی ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اور صرف
सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवा रहे, लोगों का बुनियादी वोट का हक वो नहीं दे रहे, सिर्फ एक वजह से कि कहीं इन्होंने जो इतनी मेहनत से पैसा पहले चोरी किया, उसके बाद मेहनत से दूसरी दफा एनआरओ लिया जनरल बाजवा से, और अब डर रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन हार गए तो वो एनआरओ ना चला जाए। इसलिए ये पाकिस्तान को उस तरफ धकेल रहे हैं। और मैं हैरान हूं उन लोगों का जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जो ताकतवर जगहों पे बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं नजर आ रहा ये मुल्क किधर जा रहा है? कह रहे हैं जी हम बजट के बाद जनाब हम गवर्नमेंट डिसॉल्व करेंगे। मैं सवाल ये पूछता हूं कि बजट में आपने करना क्या है? मुल्क का तो दिवालिया निकाल दिया है, तो बजट में कौन सा आपने कोई जादू करना है कि ये मुल्क इस तबाही से निकलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि किसी तरह लंबा खींचा जाए और इलेक्शन ना हो। और ये धोखा है, क्योंकि अगर इनको मुल्क की फिक्र है और ये चाहते हैं कि एक ही टाइम पे इलेक्शन हो, तो अनाउंस कर दें, मई के पहले हफ्ते में इलेक्शन अनाउंस कर दें, एक ही वक्त पे इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये इनकी नीयत नहीं है। इनकी नीयत यह है कि इलेक्शन तब हो जब वही लंदन प्लान के ऊपर पूरा अमल हो, जो श्योरिटीज दी गई थी नवाज शरीफ को कि फिक्र ना करें, तहरीक इंसाफ क्रश हो जाएगी, इमरान खान को जेल में डालेंगे या दुनिया से फारग कर देंगे, और फिर वो नवाज शरीफ आएगा यहां इलेक्शन लड़ने के लिए, सारे केसेस भी माफ हो जाएंगे उसके। अभी भी इनके नून लीग के लोग कह रहे हैं जी उसके केसेस माफ कर दो। किस कानून के तहत? उसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया हुआ है। किस कानून, कौन से शिक है कानून की कि जनाब वो आएगा बात जो झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है? ये शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया हुआ था कि ये इलाज करवाने जा रहा है। इसको भी इस पे डिस्क्वालीफाई करना चाहिए कि झूठा एफिडेविट दिया था, और उसको कि जी वो आएगा बादशाह सलामत तो उसके केसेस माफ हो जाएंगे। ये दूसरी दफा इसके केसेस माफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हुदैबा पेपर मिल्स का माफ हुआ था मुशर्रफ के साथ। तो मैं ये तजवीज देता हूं कि अब जब इलेक्शन पे वापस अगर नवाज शरीफ आ जाए तो मुझे भी ईसीएल पे डाल देना और इसको भी ईसीएल पे डाल देना। इलेक्शन के बाद तक ईसीएल पे हमें रखे, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती उससे पहले भागने नहीं देना इनको, क्योंकि इनमें से ज्यादातर चूहों ने भागने की कोशिश करनी है, किश्ती से छलांग मारने की कोशिश करनी है। इनको खौफ इलेक्शन से और पाकिस्तान की आवाम से। तो आज ज़मान पाक के जितने मेरे कारकुन यहाँ आए हुए हैं, मैं आज फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। कल हमारा फैसला हो जाएगा। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि कल तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और उस पर फिर हम अपना लाएअमल तय करेंगे। तो मैं आज ये अपने सारे कारकुनों को, पाकिस्तान की आवाम को कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की तो सारी कौम ने अपने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होना है। आप सब जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कि आप सब तैयार हैं? इंशाअल्लाह सारी कौम तैयार है। और हम इस बारी हमारी जो 1 साल ट्रेनिंग हो चुकी है, 1 साल से हमारी ट्रेनिंग हो रही है, इंशाअल्लाह जो अब पाकिस्तान की कौम सड़कों पर निकलेगी अपना हक लेने के लिए, अपना जमहूरी, अपना इंसानी हक, जो बुनियादी इंसानी हक है वोट देने का, कि अपने लोगों को, अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करवाने का, वो हक लेने के लिए इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर निकलूंगा। एहतजाज करेंगे पुरअमन तरीके से, जो हमने हमेशा किया। ओके फैसल। नारा रिसालत, नारा हैदरी, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। जरा प्यार से बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा बैठ के बोलो, और जरा उठ के बोलो, जरा फिर से बोलो, जरा घूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो,
हंसा फाड़ के बोलो, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने सवाल पे आती हूँ। सर, जब आपकी KPK में गवर्नमेंट आई थी तो आपने पुलिस के इदारे में बड़े ज़बरदस्त रिफॉर्म्स किए थे, तो पंजाब में ये इतना मुश्किल क्यों है? जी, पहली चीज तो आपने कहा ना कि हमारा कोई बंदोबस्त नहीं था। आप यकीन करें कि मेरे ज़हनो गुमान भी नहीं था कि मेरी अपनी इस मुल्क की पुलिस और रेंजर्स मेरे घर के ऊपर 24 घंटे अटैक करेगी। मैं अगर मुझे ये कहता, मैं कभी ये बात माननी नहीं थी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। यानी एक बहाना था कि जी हमने आपको अदालत में लेके जाना है, तो जब मैंने उनको श्योरिटी बॉन्ड दे दिया था कि मैं अदालत में वैसे ही जा रहा हूं, तो वो कानून के मुताबिक अरेस्ट कर ही नहीं सकते थे। लेकिन प्लान कुछ और था। यहां ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले मेरे ऊपर कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया वजीराबाद में। वो लोग इस वक्त इक्तदार में बैठे हैं और उन सबको खौफ है कि कहीं इलेक्शन हुआ, ये जीत गया तो इनका एहतसाब होगा, तो उन्होंने फिर कोशिश की। ये जो इन्होंने किया है, ये कभी किसी, आपने सुना है कि पाकिस्तान में कभी किसी घर के ऊपर इस तरह हमला किया गया है? और इतनी ये पुलिस जरा देखें, ये आप सामने देखें कि ये कोई यहां कोई कलभूषण यादव बैठा हुआ था, कोई इंडिया का सबसे बड़ा कोई गद्दार या स्पाई बैठा हुआ था, ये एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह था। उसके ऊपर इन्होंने जिस तरह हमले किए हैं और जो आर्मर्ड कार और ये जो सारे इस्तेमाल किया, हमारे तो ज़हनो गुमान में नहीं था कि ये कभी इस तरह का करेंगे। और मैं दाद देता हूं आप जैसे वर्कर्स, हमारी ख्वातीन, ये जो हमारे नौजवान थे, ये देखें, ये जो नौजवान अकेला जिस तरह ये इन्होंने स्टैंड लिया, इसका तो कोई मिसाल ही नहीं है पाकिस्तान में कि जिस तरह इन्होंने जिस जज्बे में इतनी ज्यादा फोर्स का इन्होंने ये खड़े हुए और उन्होंने बचाया। नहीं तो इन्होंने अगवा करके ले जाना था और सबको ये खदशा था कि ये सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि जेल में डाले, इन्होंने मार देना था क्योंकि डरे हुए हैं। इन्होंने फिर कोशिश की 18 मार्च में मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मारने की, तो ये तो मेरे कारकुन थे, उनका जज्बा था जो उन्होंने मुझे बचाया। और ये देखें, ये उस्मान को देखें कैसे भी कि वो उसके सामने खड़ा हो गया समाविया के। तो हम पहले तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो हुआ है इसकी कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान में। जिस तरह ये नौजवान खड़े हुए हैं 24 घंटे और जिस तरह की शेलिंग हुई और जिस तरह उन्होंने बार बार अटैक किया। दूसरी चीज जो आपने कहा पंजाब पुलिस, देखें यहां नवाज शरीफ और इसका जो भाई है, ये 35 साल से पंजाब के ऊपर मुसल्लत है। ये 35 साल से यहां पावर में है। इनकी एक रिपोर्ट है 1992-93 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में, जिधर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आईजी अब्बास खान, जो तब पंजाब का आईजी था, उससे पूछा कि पंजाब पुलिस इतनी करप्ट क्यों है। तो आईजी अब्बास खान ने रिपोर्ट दी। उसने कहा कि ये शरीफ बरादरान ने पैसे लेके लोगों को पुलिस में भर्ती किया, मेरिट की धज्जियां उड़ा दी, और उन्होंने एक तीसरी चीज कही, कई मुजरिमों को इन्होंने पुलिस में भर्ती किया। तो वो जो पुलिस इनके दौर में जो पुलिस बनी हुई है वो आसान नहीं थी पख्तूनख्वा में ज्यादा, क्योंकि एएनपी तो सिर्फ 5 साल के लिए 5 साल के लिए थी। ये तो 35 साल के बैठे हुए हैं। इन्होंने तो नीचे से लोग भर्ती किए। तो इनके ऐसे लोग यहां हैं जो हमने पूरी कोशिश की पंजाब पुलिस को डिपोलिटिसाइज करने की, लेकिन वो पहले से ही पोलिटिसाइज थी। इनके लोग बैठे हुए थे। इन्होंने हर जगह हमारे लिए मुश्किलें पैदा की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें पता चल गया वो इतने ज्यादा नहीं है। इस वक्त जो पुलिस का इन्होंने इस्तेमाल किया, पुलिस के अंदर से लोगों ने हमें बताया कि कौन कौन से पुलिस वाले हैं जो कि खास तौर पे जिनको इंस्ट्रक्शन थी हमारे ऊपर जुल्म करने की, और इंशाअल्लाह उनको कानूनी तौर के ऊपर उनके ऊपर एक्शन लेंगे जब भी अल्लाह ने मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब 2005 का मैं आपका वर्कर हूं, और क्वेश्चन करने से पहले मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा आपको कि इस बार आपने तो कंफर्म है थर्ड मेजोरिटी के साथ इंशाल्लाह आपने गवर्नमेंट में आना है। पहली बात यह है कि आपने कंप्रोमाइज नहीं करना इनके साथ।
दूसरी बात यह है कि मैं आपके साथ हाथ जोड़ के कहता हूं कि किसी की एक्सटेंशन नहीं करनी। दो बात ही है। और क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी यानी कि जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ गई है ना, 40% एजुकेटेड जनरेशन पाकिस्तान छोड़ के चली गई है। तो अब जब आएंगे आप इक़्तिदार में, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो कौन से आप इक़दामात करेंगे ताकि जो हमारी जनरेशन पढ़ी लिखी है वो यहीं पे रह के पाकिस्तान को यानी कि खिदमत सर अंजाम दे। और दूसरा ये है कि जो आप प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अपोजिशन में थे, आपके साथ जिस तरह के यानी कि आपको तकलीफ दी गई, उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद जब अभी यानी कि 1 साल रिसेंट हुआ है जो आपके यानी कि आपके खिलाफ कर रहे हैं इक़दामात, आपके यानी कि इवन आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं ये नाअहल लोग। तो इस हवाले से मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि आप स्पेशली नौजवानों के हवाले से कि आप क्या IT के हवाले से क्या प्रोग्रेस करेंगे ताकि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सके। देखिए, सुने जरा मेरी बात। देखिए, कौमों की जिंदगी में ना ऊंच नीच आती है, इंसान की जिंदगी में भी ऊंच नीच आती है, कौमों की जिंदगी में भी ऊंच नीच आती है। ये कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने सारा वक्त उरूज देखा हो, और कई ऐसी कौमें हैं जिन्होंने बिल्कुल तबाह होकर खड़ी हो गई। जिस तरह जर्मनी और जापान था, दूसरे जंग अजीम के बाद अगर आप वो फिल्में देखें तो उनकी एक बिल्डिंग खड़ी नहीं थी, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई थी, लेकिन 10-10 साल में दोनों कौमें फिर खड़ी हो गई। सो ये याद रखे, आदमी भी गिरता है, वो फिर अपनी गलतियों का जायजा लेता है, फिर वो मेहनत करता है, वो फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो आदमी जो गिरता है और हार मान जाता है, वो फिर नीचे ही रह जाता है। कौमें भी जब अपनी गलतियों से नहीं सीखती, वो कुरान में तो अल्लाह कहता है कि मेरी जमीन पर निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तो ये याद रखना कि ये ऊंच नीच इंसान और कौमों की जिंदगी में होता है। जब बुरा वक्त आता है, जो आज पाकिस्तान को आ गया है, तो हम सबको पता है कि बुरा वक्त क्यों है। किसी भी मुल्क के ऊपर आप उस मुल्क के बड़े बड़े जुराइम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दें और फिर यह समझे कि वो मुल्क ऊपर जाएगा, तो ये तो अल्लाह के कानून बने हुए हैं। जब अल्लाह कहता ना कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली, तो मैं सारी कौम को बार बार बताता रहता हूं कि वो अल्लाह का हुक्म, सबसे बड़ा हुक्म क्या है एक कौम के लिए। आप मुझे बताएं सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? सबसे बड़ा अल्लाह का हुक्म है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। इंसानी माशरा जानवरों के माशरे से फर्क ही इस तरह होता है कि उधर इंसाफ है और जानवरों के माशरे में ताकत की हुक्मरानी है, यह फर्क है। तो जब एक इंसानों के माशरे में इंसाफ नहीं होता और चोरों को ऊपर बैठा देते हैं और वो आके ऊपर बैठ के वो मुल्क को पैसा चोरी करना शुरू कर देते हैं और हम समझे कि मुल्क तरक्की करेगा, वो नहीं करेगा। अल्लाह ने चैलेंज किया पाकिस्तानी कौम को, यह हम सब के लिए अब चैलेंज है, क्या हम इस जुल्म का मुकाबला करेंगे या नहीं करेंगे। जो इंसाफ और आजादी के लिए जब इंसान जद्दोजहद करता है तो अल्लाह उसको बहुत ऊंचा रुतबा दे देता है। शहादत होती है, अगर अपनी आजादी के लिए और इंसाफ के लिए इंसाफ अपनी जान देता है तो उसको शहीद का रुतबा दिया जाता है। और जो माशरे अपनी जुल्म का मुकाबला नहीं करते वो मिट जाते हैं। ये याद रखें, इंसानी तारीख है, कुरान में कितनी जगह बताया हुआ है, अल्लाह ने मिसालें दी हैं कि कौमें तबाह हुई। वो सारी कौमें तबाह हुई जिधर जुल्म बढ़ गया और आखिर में वो तबाह हो गई कौमें। सो हमारे लिए ये चैलेंज है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सारे प्रेशर के बावजूद वो आइन के साथ खड़ा हो गया और ये सारे चोर मिलकर उसको बुरा भला कह रहे हैं। अब ये हमारी कौम के लिए चैलेंज है कि क्या हम उस चीफ जस्टिस और अपने आइन और कानून के लिए खड़े होते हैं या नहीं होते। तो जो आपका सवाल का जवाब यह है कि अगर हम खड़े हो गए ये पाकिस्तान उठ जाएगा, और अगर ना खड़े हुए तो वो फिर जो तकदीर का कातिब है, उसने जब से दुनिया बनाई है उसका फरमान है कि जो कौमें जुल्म के बुत के सामने सर झुकाती हैं वो खत्म हो जाती हैं।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इंशाअल्लाह कुरान कहता है कि सच्चे मुसलमान का फतह मुकद्दर है। तो मैं आंखों से नाबीन हूँ। सबसे पहले तहरीक इंसाफ को सलाम, फैसल भाई को, सारी संगत, मेरे दोस्त महबाब को सलाम, और इमरान खान साहब अगर आप अपनी आंखों से मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे सलाम का जवाब दें, फिर मैं बात करता हूं आपसे। जी वालेकुम सलाम। आपका ख्वाब है, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं अकेला सखर से आया हूं, मैं नात पढ़ता हूं और मेरे दिल में पंजतन पाक की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, उसके बाद आपकी मोहब्बत है। तो खान साहब आपसे मिलने के लिए मैं आया हूं। आपका ख्वाब मुल्क के लिए, मेरा ख्वाब आपसे मिलने के लिए है। मैं ट्रेन के जरिए, मुझे सीट बैठने के भी नहीं मिली थी, मैं ओपन टिकट कटवा के किसी दोस्त से उधार लेके आपसे मिलने के लिए आया हूं। रात से जागा हुआ, अभी तक नहीं सोया हूं। आपके लिए मैं गिफ्ट भी लेके आया हूं सिंध से, छोटी सी जो मेरे मुकद्दर में और जो मेरी हैसियत थी वो मैं आपको गिफ्ट भी देना चाहता हूं और आपसे मिलना चाहता हूं। अगर मैं ऐसे गया तो जो सिंध में आपके मुखालिफ हैं और जिसके मुखालिफों के बीच में मैं रहता हूं वो मुझे कहेंगे कि आप मिलने गए थे, आपको तहरीक इंसाफ वालों ने इमरान खान के साथ मिलने भी नहीं दिया गया। तो मैं सक्कर से आया हूं, मेरा ख्वाब आपसे मिलने के लिए है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं इंशाल्लाह बाकी आपके सामने बातें करूंगा। मैं खुद नात खान हूं, अगर टाइम है तो मैं इधर भी नात सुना दूं, वरना आपको सामने सुना दूंगा। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको इसलिए नहीं मिलूंगा कि वो आपके सिंध के लोग, अगर मैं आपको ना मिला तो वो आपके मुतालिक क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों की कभी आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। लोगों को खुश करने की कोशिश ना किया करें, अल्लाह को खुश करें, अवाम खुद ही खुश हो जाती है। लेकिन इंसानों को आपने खुश करने की कोशिश की तो वो तो आप सारी जिंदगी बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारेंगे, यानी एक मायूसी रहा करेंगे सारा वक्त। मैं कभी लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करता या वो बातें नहीं करता जो लोग जिससे खुश हो। मैं अपनी एक मिशन अल्लाह के लिए कर रहा हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी मेरे मुतालिक कहे, क्योंकि इज्जत और जिल्लत तो हम सब जानते हैं कि उसके हाथ में है। देखिए मैं इंशाल्लाह आपको कल मैं आपसे मुलाकात करूंगा और आपने फैसल जावेद ने आपका नोट कर लिया तो मैं इंशाल्लाह कल आपको मिलूंगा। नहीं, मैं सवाल की तरफ जाए। मैं क्वेश्चन जी फैसल आखिरी क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि कल मैं ज्यादा क्वेश्चंस लूंगा। कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक। हमें पता भी चल जाएगा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जी वो किस तरफ जा रहे हैं, और फिर मैंने अपने लोगों को गाइड भी करना है कि हमारा अगला लाएमल क्या है। मैंने फिर सारी कौम को तैयार करना है, तो इसलिए कल मैं ज्यादा लंबी बात करूंगा। आज मैं चाहता हूं कि आखिरी क्वेश्चन पूछा जाए। और खान साहब हमने एक सर्वे किया आज, तो ये सब की राय है, तकरीबन 90% ये चाहते हैं कि 7 बजे आपकी तकरीर हो, या खिताब जो आप करें 7 बजे करें। बिल्कुल कल 7 बजे होगा। आज तो हमें इस्लामाबाद जाना पड़ा था, इसलिए देर हो गई। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल 7 बजे करूंगा मैं। तो आप कल आ जाइएगा 6 बजे, और जो सवालात आज रह जाएंगे वो हम कल के शामिल कर लेंगे, तो आप कल सवाल कर सकेंगे और फिर नई कुरानदाजी भी कल होगी। अगला सवाल, नाम है उस्ताद अमजद जी। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा तल्लक राना नवीद क्रिकेट अकेडमी से है। मैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में आपसे कुछ करूंगा, सवाल करूंगा। मुझे वो भी वक्त याद है कि आपने जब श्रीकांत ने बड़ा अच्छा इंडिया का बैट्समैन था, आउट हो गया और वो शोर मचा रहा था पीडीएम की तरह, आपने दोबारा उसको बोला कि आगे बैटिंग कर लो, और फिर रिजल्ट वही हुआ जो इनका पीडीएम वालों का होता है। और दूसरा मेरा सवाल है आपसे के साथ कि ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो कहना भी बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है कि बड़ा डर लगता है, लेकिन मैं न्यूट्रल अंपायर के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये जो न्यूट्रल अंपायर है, आपने पूरी दुनिया में क्रिकेट की हिस्ट्री में एक बदल के रख दिया सिस्टम सारा। आज तक दुनिया न्यूट्रल अंपायर खिला रही है। मेरा इलेक्शन कमीशन जो है ना हमारा, ये भी एक किस्म का न्यूट्रल अदारा है, लेकिन इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कुछ कर रहे हैं या जिस तरह कर रहे हैं, जो पीडीएम को सपोर्ट करते हैं, पीडीएम का बयान बाद में आता है, पहले इनका आ जाता है जी ऐसे करना है। वो वही कहते हैं कि वो जो जैसे कहते नहीं घर में बैठ के 2-4-6 लोग एक मशवरा करते हैं, बारी बारी वो उनके मिनिस्टर करना शुरू कर। मेरा सवाल ये है कि हमने इंडिया की सीरीज में न्यूट्रल अंपायर लगाए थे, अगर हमारा ये सिस्टम जिस तरह है ये तो नहीं ठीक होने वाले, जिस तरह के जितने ये करप्ट हो चुके हैं। क्या आप अपनी हुकूमत जब आएगी, इंशाल्लाह आएगी, और वो जब आएगी तो आप ये इन्हीं को ठीक करेंगे या कोई बाहर से हमें आप न्यूट्रल लाने पड़ेंगे? देखें, अच्छा सब आराम से ये सवाल इसका जवाब सुनना है सबने। देखिए जो आजाद माशरा होता है ना,
اور غلام معاشرے میں فرق کیا ہوتا ہے. اب ذرا یہ سمجھنا ہے آپ نے. جو آپ کی اس وقت جنگ ہے وہ حقیقی آزادی کی ہے. حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی وہ ہوتی ہے ایک شہری جب وہ اپنے ٹیکس بھی دیتا ہے, قانون بھی نہیں توڑتا, اس کو پھر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, وہ آزاد پھرتا ہے, اس کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا, اس سے کوئی ناجائز, اس کو کوئی رشوت نہیں لے سکتا. وہ جو کام کرے گا کیونکہ وہ اپنا قانون کے مطابق چل رہا ہے, اس ملک کا کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور وہ پھر جب آزاد معاشرہ ہو جاتا ہے جدھر لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں, وہ پھر اوپر چلے جاتے ہیں, وہ معاشرے آگے نکل جاتے ہیں, کیونکہ آزادی کے ساتھ میرٹ بھی آ جاتی ہے. صرف آزاد معاشروں میں میرٹ ہوتی ہے. میرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو محنت کرے اس کو پھل ملتا ہے. وہ معاشرہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کا سارا ٹیلنٹ اوپر آ جاتا ہے. جو محنت کرتا ہے محنت کا پھل ملتا ہے. آپ کے جو یہاں سے پاکستانی جاتے ہیں یورپ میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, تو وہ کیوں خوشحال ہو جاتے ہیں؟ وہاں مہنگائی بہت ہے, یعنی کیونکہ ان کا جو روپیہ ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں مہنگا ہوتا رہنا. لیکن ادھر جو وہ محنت کرتے ہیں ان کو پھر, اور وہ اپنے ٹیکس دے دیتے ہیں, وہ پھر آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ محنت کا پھل ملتا ہے اور وہ پھر اور محنت کرتے ہیں. جتنی محنت کرتے ہیں اتنے اور پیسے کماتے ہیں, اتنا اپنے حالات اور بہتر کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھتے دیکھتے ان کو دیکھا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہاں نہیں ہو سکتا کیونکہ میرٹ نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے وہ کیوں نہیں ہے. ابھی جو آپ نے بات کی, آپ نے تو صرف الیکشن کمیشن کی بات کی. ساری دنیا جو جدھر آزاد معاشرے ہوتے ہیں وہاں پولیس بھی نیوٹرل ہوتی ہے. نیوٹرل کا مطلب یہ کہ پولیس قانون کے مطابق چلتی ہے. پولیس سے آپ غلط کام نہیں کروا سکتے. جو انہوں نے میرے گھر کے باہر اٹیک کیا تھا, انہوں نے جب میں اسلام آباد گیا میرے گھر کا دروازہ توڑ کے چیزیں لوٹ کے لے گئے, لوگوں کو پکڑا, یہاں سے لوگ اٹھا کے لے گئے. یہ کسی آزاد معاشرے میں پولیس کو اگر پولیس کرے گی ان سارے آج جیلوں میں ہوتے, کیونکہ آزاد معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے. ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ سرچ وارنٹ کے بغیر اور صرف 2 لوگ جائیں گے میرے گھر میں, اور وہ 40 لوگ دروازہ توڑ کے میرے گھر میں پولیس آ کے لوٹ کے لے گی, جو چیزیں ملی لوٹ لی. یہ غلام معاشروں میں ہوتا ہے کیونکہ جو پولیس ہے وہ قانون کے اوپر نہیں چلتی. وہ جو حکمران ہیں ان کی نوکریاں کرتی ہیں, اور وہ لوگ ہی ایسے لے کے آتے ہیں. جس طرح اسلام آباد کا جو آئی جی ہے, اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی میں, اس نے فراڈ کیا ہوا تھا. شہباز شریف جان کے اس مجرم کو لے کے آیا اس لیے کہ یہ سارے غلط کام کرے اس کو. آج انہوں نے ہمارے لوگ پرامن گاڑیوں میں بیٹھے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا اسلام آباد میں. یہ کون سے آزاد معاشرے میں ہوتا ہے؟ پچھلی باری ہم گئے, پھر انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں گاڑی توڑ دی, ایسے ڈنڈے مار کے گاڑی توڑ دی. یہ صرف وہ معاشرے جو غلام ہوتے ہیں, جدھر حقوق نہیں ہوتے, جدھر انصاف نہیں ہوتا. پولیس آزاد ہوتی ہے, پولیس نیوٹرل ہوتی ہے, الیکشن کمیشن نیوٹرل ہوتی ہے. چاہے جو مرضی اقتدار میں ہے, الیکشن کمیشن قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے. یہ نہیں جو یہاں ہو رہا ہمارے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے. کون سی دنیا کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ حرکتیں کرتی ہیں جو یہ کر رہی ہے محسن نقوی اور یہ جو سارے چن چن کے انہوں نے جرائم پیشہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے. ادھر عدلیہ آزاد ہوتی ہے اور نیوٹرل ہوتی ہے. اور شکر ہے کہ اس وقت ہمارا چیف جسٹس ایک تکڑا چیف جسٹس یہ مافیا کے خلاف سٹینڈ لے کے کھڑا ہوا ہے. شکر ہے, نہیں تو ہمارا یہاں پیچھے ججز بھی مل جاتے تھے جا کے, نیوٹرل نہیں ہوتے تھے. ہماری تاریخ ہے. اور ادھر بیوروکریسی, سول سروس وہ نیوٹرل ہوتی ہے. وہ غلط, آپ ان کو حکم کریں غلط کام کے وہ نہیں کریں گے. وہاں ان کی فوج نیوٹرل ہوتی ہے. یہاں کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہے اس وقت. ایسے لوگوں کو بیوروکریسی میں بٹھا دیا. نہ وہ نیوٹرل ہے, نہ ایف آئی اے نیوٹرل ہے, یا نیب نیوٹرل ہے, نہ ایف بی آر نیوٹرل ہے. کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہے. ساروں کو انہوں نے ساتھ ملا کے قانون توڑے ہیں ملک کے. غیر قانونی چیزیں کر رہے ہیں, وہ ملک آگے نہیں جا سکتا. جب آپ
उन इदारों से जिनका काम है इंसाफ देना या जिनका काम है न्यूट्रल रहना, उनसे आप गलत काम करवाते हैं, वो मुल्क की तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। वो लोग तो गुलाम बन जाते हैं। लोग डरते हैं कि जी मेरे ऊपर झूठा केस कर देगा। वो लोग बेचारे गुलाम। अब क्या देहातों में क्या होता है, सिंध में जरा चले जाए, सिंध से शुरू करें ऊपर, सिंध में क्या होता है, वो सारे बेचारे लोग डरे होते हैं। वो थोड़ा सा लाइन से हटते हैं, पुलिस थाने में केसेस। अब अली अमीन के ऊपर क्या हो रहा है, एक केस खत्म होता है दूसरा केस हो जाता है, वो केस खत्म होता है तीसरा केस कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, ये किस आजाद माशरे में ऐसे होता है? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर में 145 केसेस हैं, ये किसी आजाद माशरे में नहीं होता। तो हमारी मुल्क, अगर आज आप बातें की ना कि जी लोग बदजन होके जा रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं, वो इसकी वजह से छोड़ रहे हैं कि जराइम पेशा लोग ऊपर बैठ गए हैं और एक आदमी जिम्मेदार है जिसका नाम है जनरल रिटायर्ड बाजवा। जितना बड़ा उसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, मैं आपको कहूं कि कोई पाकिस्तान का दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था वो जो पहुंचा के गया। अल्लाह करे हमारा जल्दी से जल्दी काम हो जाए और ये इलेक्शन जो है बहुत जल्द हो। बसूरत दीगर मैंने एक नज़्म लिखी थी, ज़रा सी आपके साथ आपको याद कराऊंगा। खान साहब, मैंने पहली बार जब किसी जलसे से खिताब किया था कराची में, तो मैंने सुनाई थी ज़रा। इब्रार जी सर। इसके बाद वो पॉपुलर डिमांड ये है कि वो जो तुमने होर चुपो गन्ने वाला जो गाया हुआ है ना, वो भी सुनना चाहती है सारी कौम। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। वो था जी, सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे, रोशनाई भी खून की होगी और वो फाका कश कलम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें हैं उनको लिखने की आरजू होगी। ना ही लम्हा करार का होगा, ना ही रास्ता फरार का होगा, वो अदालत गरीब की होगी, जान अटकी वजीर की होगी, जिसने बेची है कल्म की ताकत, जिसने अपना जमीर बेचा है, जो दुकानें सजाए बैठे हैं, सच से दामन छुड़ाए बैठे हैं, जिसने बेचा अजाब बेचा है, मुफलिसों को शराब बेचा है, दीन को बेहिसाब बेचा है और कुछ ने रोटी का ख्वाब बेचा है। और क्या कहें हम कि कौम को इसने किस तरह बार बार बेचा है। फैजो इकबाल का पड़ोसी हूं, एक तड़प मेरे खून में भी है, आंख में सिलसिला है ख्वाबों का, एक महक मेरे चार सू भी है। झोंपड़ी के नसीब बदलेंगे फिर कहीं इनकलाब आएगा, बैठ रहने से कुछ नहीं होगा, एक दिन इनकलाब आएगा, एक दिन इनकलाब आएगा, एक दिन इनकलाब।